सोच को परिवर्तन करेंगे तो आत्म परिवर्तन होता है, आत्म परिवर्तन से जीवन परिवर्तन होता है, जीवन परिवर्तन से समाज परिवर्तन होता है, समाज परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। इसके लिए परिवर्तन का जो सीडलिंग है थॉट है। इसके लिए थॉट को करेक्ट करने के लिए to avoid waste thought, negative thoughts, improve thoughts, unnecessary thoughts, and also create a very positive thought, we need to understand ourselves and our nature, our आदि मध्य अंत को, हमारे संस्कारों को, संस्कृति को, परंपरा को, इतिहास को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय थ्रू दिस थॉट लैब को हो, हैप्पीनेस लैबोरेटरी को हो, and happiness comes out of our thinking. So that's the ultimate aim of life or ultimate aim of education. इस एजुकेशन के माध्यम द्वारा जीवन को शक्तिशाली बनाएंगे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय Kazan, today we have got in 147 countries centers and more than 10 lakh brothers and sisters are practicing this Raj Yoga meditation. Yoga is the key, or yoga is the primary purpose of this Ishwari Vishwavidyalaya. So that's why through education or through the understanding, through the practice of Raj Yoga meditation, we automatically generate the pure thought, peaceful thought, blissful thought, powerful thought, and such thoughts ultimately reflect in all our activities and in our nature. So Ishwari Vishwavidyalaya, the success rate is very high, and that's why this Ishwari Vishwavidyalaya has planned this activity. I'm very happy and proud to associate with the Lucknow University, having 100 years. It is a senior, it is a bigger university, and we have already spent what most beautiful 100 years in the society in contributing, in changing, in transforming, performing the education system better. So, and I feel and am proud to meet some of your faculty members during my 2 years back visit your institution. And today I'm very happy to see the Vice Chancellor of the university. The more we become less Chancellor, voice automatically disappear, and thereby we become very, very powerful being. So I wish this university become the role model and for the entire country and for the world, so that more and more good people becomes and transforms through this education, not only local education, but spiritual education, because I feel and spiritual education is missing in all our universities or education institutions. So that is why Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya was established for the purpose of offering a spiritual education that includes yoga or meditation. And through this yoga and meditation, we can transform the individual. स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कहा जाता है। इसके लिए स्व परिवर्तन के लिए आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, प्रभु चिंतन और भारत के पूर्व इतिहास को देख करते हुए, और भारत का देव भूमि था एक समय में, आज वो देव भूमि परिवर्तन हो चुका है। और दैट्स व्हाई द एजुकेशन, मेरे पर्पस ऑफ एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस इनटू डिविनाइजेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस, commercialization of every human activities into noble activity, and also communalization of human conscious or human life or human system to into a very दान पुण्य करना, श्रेष्ठ कर्म करने की तरफ परिवर्तन करना। और भी अनेक बातों आप सभी जानते हैं। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आप सबसे मिल करके ये कार्य करना चाहते हैं, और इसका आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया, सहयोग दिया। आगे भी हम दोनों मिल करके अच्छे काम करते रहेंगे। ऐसे काम करने के दिशा में इतना बड़े यूनिवर्सिटीज हम ज्वाइन हो रहे हैं, और आज का एक शुभ दिवस पर, और आपका विशेष करके सेंटेनरी सेलिब्रेशन का वर्ष बना रहे हैं, ऐसी समय पर मैं सबसे बड़ी हमारा राधा बहन को भी बधाई देता हूँ, और पांडेमणि जी को भी बधाई देता हूँ, और विशेष करके आपका यूनिवर्सिटी के प्रत्येक प्रोफेसर्स को, क्योंकि हम विश्वास करते हैं आचार्य देवो भव। आप लोग केवल एजुकेटेड लोगों का ही नहीं, मनुष्य को महान मनुष्य, देव मानव मनुष्य बनाने का जो कर्तव्य जो है एजुकेशन का, उस कर्तव्य को पालन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उसको एक चरितार्थ करने के लिए आप सभी मिले हैं। इसके लिए मैं हर एक आत्मा को, हर एक प्रोफेसर्स को, हर एक कर्मचारियों को इस यूनिवर्सिटी का मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, गुड विशेष देता हूँ। हम सब मिलकर के धरती माँ को सुंदर
दुनिया बना करके देंगे, ऐसा बनाने वालों के लिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेबोरेटरी इज वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, एंड एट दिस मोमेंट यू आर मेकिंग, व्हेन द होल वर्ल्ड इज अंडर फियर, ऐसे भयमुक्त, रोगमुक्त, पापमुक्त, चिंतामुक्त और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करने का कार्य में ये हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए जो आप लोगों ने सोचा, इस सोच को साकार करेंगे। हम सब मिलकर के पुनः भारत को देव भूमि बनाएंगे। ऐसे बनाने वाला को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपके इनकरेजिंग वर्ड्स और मोटिवेटिंग वर्ड्स के लिए बहुत बहुत आभार। अब मैं अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर को इनवाइट करना चाहूंगी फॉर हिज वर्ड्स ऑफ विजडम। एंड एज वी ऑल नो दैट ही इज द यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी and he is the champion of customer relationship management, and University of Lucknow has achieved heights since he has taken over charge of this university. He has centered his focus upon building a culture of student centricity across various departments, institutes, and associated colleges of the university, and transforming the face of higher education. Aligned with the university's ambition of serving the society as a harbinger of economic, social, and spiritual progress, Professor Rai is leading these institutions towards creating impact bigger and better than ever before. So I would now request Professor Alok Kumar Rai sir for his words of wisdom on this platform. Thank you, madam. Thank you so much. Most respected B.K. Mrityunjay ji, I was just listening to him. I can recognize some of the faces, including Radha Ben, and many of the participants are from my own institution, from my own university, and all the people who are participating in this program, in this MOU signing program. First of all, let me take the opportunity to welcome you all to the centenary year of this great seat of learning, that is Lucknow University. This university started celebrating its centenary with B.K. Shivani, and we visited our campus along with Radha Ben in the month of January. And hers was the first program. We had planned for a year-long program, with each month having been invited to the campus and speak to our teachers, students, and non-teaching staff as well. So she was the first one, and what a start with such a wonderful soul. But then somehow this COVID issue came up and we had to stop. But then again, what a finish with an MOU with Brahmakumaris. So the beginning and end, Brahmakumaris and your institution has got very, very important role to play with University of Lucknow. So I consider it to be a soulmate kind of institution. And we, from abstract to physical, we try to convert it into, and this Happy Thinking Lab was a concept that started when she visited our campus, and we discussed on this issue, and we explored certain avenues that where we could collaborate, because sustained happiness, especially among students, is need of the hour. And this is one issue that many of the institutions are also researching enormously. बहुत ज़्यादा शोध और विमर्श का विषय ये बना हुआ है कि छात्र लगातार they should feel happy, they should be happy. हम in our institution ये सिस्टर शिवानी का ही कॉन्सेप्ट था, जो उन्होंने हमसे कहा कि क्यों नहीं विश्वविद्यालय में एक नो एंगर जोन होना चाहिए, और आज हमारे विश्वविद्यालय में हमने 2 नो एंगर जोन बनाए हुए हैं उन एरियाज में जहां सबसे ज्यादा एंगर का एग्जीबिशन होता है। तो इस तरह से उसका और सस्टेन्ड मॉडल डेवलप हो सके और वर्क कर सके, फॉर दैट वी वर्कड अपॉन
merger of science and spirituality. So in our institution, the science of philosophy, psychology, is merging with the soul of spirituality, and the byproduct is Happy Thinking Lab. एक ऐसा लैब जो हमको खुश रहने का, सकारात्मक विचार का सतत प्रवाह दे, ऐसा ऐसा एक प्रयास है. एंड बिकॉज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट जस्ट बी an institution for transforming certain piece of information. तो करिकुलम को सिर्फ बच्चे को पास ऑन कर देना, ये तो शैक्षणिक संस्थान का उद्देश्य नहीं हो सकता है, और विश्वविद्यालय का तो कतई नहीं हो सकता है, because by definition this is university. So holistic development of the student is imperative, and this Happy Thinking Lab is one of its kind in the country, where we are aiming at creating sustained happiness among these students, which is need of the hour. We do witness a lot of stress among students for a variety of reasons, and many of the angers are expression of the stress. So वो कैच देम यंग का जो प्रिंसिपल है, जब नेगेटिविटी छोटी हो उसी समय उसको पकड़ लें एंड वहीं से उसको एड्रेस करें, तो शायद वी शैल बी एबल टू एड्रेस इट. बिकॉज हमको खुशी क्या है इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ आई एम अलाउड, वी हैव गॉट सम ह्यूज लेजेंडरीज हियर इन दिस एट दिस फोरम, तो इफ आई एम अलाउड आई विल शेयर अ स्मॉल स्टोरी. प्लीज सर. थैंक यू. एक बार एक आदमी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और उसकी हरकत देख के लग रहा था उसके दोस्तों को कि इट्स नॉट वेरी इजी, वो बहुत खुश नहीं दिख रहा है. तो his friends asked कि भाई तुमको क्या तकलीफ है? बोले कुछ नहीं, मेरा जूता बहुत काट रहा है. तो दोस्तों ने कहा भाई जूता काट रहा है तो जूता हटा दो, बदल दो जूता, इसमें क्या दिक्कत है? उसने कहा भाई जूते की बात ना करो, मेरी बीवी बहुत बीमार रहती है, मेरा बेटा शराबी और जुआड़ी हो गया, मेरी बेटी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध किसी गलत लड़के से शादी कर ली, मेरा बिजनेस व्यापार में एकदम घाटा चल रहा है, जूते की बात ना करो. दोस्तों ने कहा भाई ये तो गजब बात है, तुम्हारी बीवी बीमार है, तुमको बेटी का भी तकलीफ है, तुमको बेटे का भी तकलीफ है, तुमको बिजनेस का भी तकलीफ है, फिर भी तुम ये जूता पहन के और अपने को तकलीफ दे रहे हो. उसने कहा कि ये जूता मेरे जीवन का अकेला सुख है, क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ शाम को और मैं जब इसको निकालता हूँ अपने पैर से, तो उतनी देर के लिए मुझे बहुत रिलीफ मिलता है. हमको ये सोचना होगा कि क्या हमारी खुशियां, जिसको हम खुशी समझते हैं, क्या वो इस काटते हुए जूते की तरह नहीं है? हमको ये नई वाली ड्रेस खरीद लेते, बड़े खुश हो जाते, फिर खरीद ली, फिर खत्म हो गया. फिर वो नई वाली गाड़ी खरीद लेते तो बड़े खुश हो जाते, तो नई वाली गाड़ी खरीद ली. फिर वो नया वाला घर बनवा लेते तो खुश हो जाते. अगर धन से या साधन से खुशी मिल सकती, और सस्टेन्ड हैप्पीनेस जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट सच्चिदानंद का है, अगर वो साधनों से मिल सकता तो हिंदुस्तान का हर धनी आदमी तो कम से कम खुश होता ही होता. लेकिन क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो वो कैसे हो सकता है? मुझे लगता है इस दिशा में our Happy Thinking Lab can contribute enormously. And again, I reiterate that this is a perfect platform of merger of science and spirituality. ये एक ऐसा स्थान बन सकता है, और मुझे लगता है जिस भावना के साथ, क्योंकि कॉम्पिटेंस में हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं, नॉलेज, स्किल और मोटिव को अक्सर भूल जाते हैं. तो जिस मोटिव के साथ ये लैब इस्टेब्लिश हो रही है, वो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हमारी प्रोफेसर मधुरिमा प्रधान मैडम को, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी हैं, और जिस भावना के साथ मैडम इस प्रयास में रमी हुई हैं, मैं कहूँ तो निश्चित ही ये उस उद्देश्य को प्राप्त करेगा जिसके लिए इस तरह के लैब की स्थापना हो रही है, जिससे कि बच्चों को हम सतत खुशी दे सकें, वो काटने वाले जूते के तरह की खुशी नहीं. और मैं बहुत आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू ब्रह्म कुमारीज. उनसे हमको एकेडमिक इनपुट भी मिलता रहेगा, स्पिरिचुअल इनपुट भी मिलता रहेगा, रिसर्च इनपुट भी मिलता रहेगा. देयर आर सर्टेन डिवाइसेस आल्सो प्लान्ड इन आवर इंस्टीट्यूशन.
तो उसको हम इसमें इस्टेब्लिश करके इसको जितना एनरिच कर सकते हैं करेंगे। इसको हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे स्टाफ के लिए, सबके लिए वी वुड वांट कि ये इस्तेमाल हो। और मैंने मैडम से एक बार कहा था कि वो कोई मशीन खरीद रही हैं जिसमें टेस्ट करेंगी कुछ, तो मैंने कहा सबसे पहले मेरा ही टेस्ट करिए। हम सबको तो खुशी चाहिए, और हम खुश नहीं रहेंगे तो फिर हम अपने लोगों को खुश कैसे रखेंगे। तो हम सब वी ऑल वुड वांट कि हमारा सेशन लिया जाए, इसमें स्पिरिचुअल सेशंस भी हों, और इससे हम अपना आध्यात्मिक विकास कर सकें, जिससे कि हम सतत बौद्धिक विकास और फिर विश्वविद्यालय की स्थापना का जो मूल है उस मूल को प्राप्त हम कर सकें। मुझे अवसर देने के लिए मैडम प्रधान आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उन तमाम गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना समय निकाला। मुझे मालूम है आप सब बहुत बड़े लोग हैं, और लेकिन इस शताब्दी वर्ष में आप सब इस मंच पर आए और हमारे साथ एक ऐसा MOU साइन कर रहे हैं जिससे हमारे बच्चों का, हमारे स्टाफ का, सबका दीर्घकालिक हित जुड़ा हुआ है। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके अच्छे वर्ड्स के लिए और मोटिवेशन के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगी BK मृत्युंजय सर से एंड आलोक कुमार राय सर से कि वो हमारे MOU पे साइन करें। एक कागज है कि इधर? मैंने एक ये सांकेतिक दीपक जलाया है आप सबके लिए। हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना के साथ कि ये MOU सफल हो और हम सबका जो एक उद्देश्य है अपने विश्वविद्यालय के बच्चों का हित करना और सभी का हित करना, तो उस उद्देश्य में हम सफल हों, इस शुभकामना के साथ। So, Manya ji, now you may take over for further. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir, Vice Chancellor, sir. Your vision has always been very enlightening for us, and your support is really, we get so much of support from you that we have no words to thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. E.V. Swaminathan, sir. And he is a trainer, teacher, counselor, and consultant with a clear focus on creating a value-based society. And sir is a BTech as well as an MBA, and he has been into engineering and management for 16 years, and he has been a corporate trainer for 13 years. And along with that, he has been awarded with the Sunrise Peace Award by Sunrise Peace Mission. And he has also been honored by the Rotary Club with the Award of Excellence and Nation Builder Award. And Sir has appeared in numerous television talks, and he has trained various students from IIT Kharagpur, Mumbai, Kanpur, as well as a number of other institutions. And Sir has taken number of workshops and sessions on emotional engineering, diluting of stress, and total quality of life, journey with harmony, empathetic communication, memory management, art of leadership, and purpose of life. And Sir has been associated with the Brahma Kumari Vidyalaya from the last 22 years. So Sir, we are really honored to have you here. Thank you. Please, we would like you to say a few words. Om Shanti. Good evening and Namaskar. Most respected Honorable Professor Alok Kumar Rai, Honorable Vice Chancellor, respected Mrityunjay Bhaiji, Madam Madhurima Pradhanji, and all my wonderful friends, including Sister Radha Bhen and the students, faculty members who have joined this particular program. First of all, at the outset, let me congratulate the Lucknow University and the Raj Yoga Education and Research Foundation for this wonderful, beautiful memorandum of understanding
to make the students, the society and the whole world a better and a happy place to live in. तो बहुत दिल से, बहुत स्नेह प्यार से मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। मुझे करीब 10 to 15 मिनट्स का समय दिया गया है। मैं 3-4 मिनट पहले आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस पे जो स्टडी और रिसर्च किया गया है पूरे विश्व में, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। 3-4 मिनट हैप्पीनेस के बारे में। फिर ये जो हैप्पीनेस का जो हैप्पी थिंकिंग लैब है, उसमें राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का संकल्प किया है। What is our action plan and what are we going to do? That's what I'm going to share with all of you, my dear friends. Now this I'm sharing it because we will look for your feedback, your inputs from all the respected people from Lucknow University, and we'll be very open for changes. बहुत विनम्रता पूर्वक हम उसको अपने लैब में जरूर इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। And the most important, ये सब तो फिर भी ठीक है, मैं चाहूँगा on this beautiful auspicious occasion, right, जहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी is celebrating its centenary, and जैसे हमारे ऑनरेबल आलोक सर ने बताया कि फाइनल भी बहुत अच्छा हो रहा है। इट्स अ हैप्पी ब्यूटीफुल कलरफुल एंडिंग, जहाँ पर हम एक नए संकल्प के साथ इस सिचुएशन को, खास करके जो सारे विश्व में जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो उसको फेस करने के लिए मैं चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, वी विल स्पेंड अराउंड 3 to 4 minutes, not much of the time, wherein we will try to be contented, happy, and spread these vibrations of peace, love and happiness to the whole world. So that is how I'll be taking this lecture, small introductory session with all of you. My dear friends, in fact, जहाँ तक happiness का सवाल है, इसका बहुत जगह स्टडी किया गया, बहुत रिसर्च किया गया, but one of the very beautiful study which I would love to quote to all of you is a study done by National Geographic in the late 90s. इन्होंने 1996 को National Geographic ने एक बहुत सुंदर स्टडी किया, एंड दिस स्टडी वाज एक्चुअली हेडेड बाय अ वेरी वंडरफुल पर्सन, हुज नेम इज डैन ब्रूटनर। और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस विश्व में, है ना, कहाँ पर कौन कौन व्यक्ति बहुत खुश है। एंड दिस वाज अ स्टडी बेस्ड ऑन वेरी साइंटिफिक एंड लॉजिकल एंड रीजनिंग। सो व्हाट दे डिड वाज, माय डियर फ्रेंड्स, दे हैड सो मेनी टीम्स, और उन्होंने क्या किया, हर एक व्यक्ति को एक मैप दिया विद अ ब्लू स्केच पेन, और कहा कि आप उन लोगों से मिलने की कोशिश करिएगा जो इस संसार में बहुत खुश रहते हैं, who are happy people. And this team with a world map and with a blue sketch pen, they went across the globe, and to the very wonderful, beautiful surprise, बहुत उनको आश्चर्य हुआ, उनके खुद अपने क्राइटेरिया थे कि जो हैप्पीनेस का क्राइटेरिया क्या है। मैं उस क्राइटेरिया पर ज्यादा नहीं समय दूंगा, लेकिन मैं उसका रिजल्ट्स बताना चाहूंगा कि उन्होंने देखा कि सिर्फ एक व्यक्ति खुश नहीं रहता है। इट इज नॉट दैट जस्ट वन इंडिविजुअल बिकम्स वेरी हैप्पी, संघ का रंग लग जाता है। तो उन्होंने ऐसे 5 जगह देखे जहां पे द होल ग्रुप वाज अ वेरी हैप्पी ग्रुप, एंड दे वर पीपल हु वर एबल टू लिव फॉर मोर देन 100 years. आई एम स्पीकिंग ऑफ द प्रेजेंट थिंग, एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन वेरियस जर्नल्स, एंड दे वर कॉल्ड एज ब्लू जोन्स। क्योंकि उनको ब्लू स्केच पेन दिया गया था, तो नेशनल ज्योग्राफिक ने उसको ब्लू जोन्स करके डेजिग्नेट किया। फॉर योर काइंड रेफरेंस, आई विल जस्ट शेयर दोस 5 happiness zones to all of you, and you will be very happy to go through this. So I'm sharing the slide with all of you. Madhurima madam, are you able to see the slide? Okay, so this is a happy thinking laboratory, a beautiful blending sangam between Lucknow University and the Brahma Kumaris Raj Yoga Education and Research Foundation. Now these are the 5 blue zones: Loma Linda in California, Nicoya in Costa Rica, Sardinia in Italy, Ikaria in Greece, and Okinawa in Japan. और जब इन्होंने ये 5 ब्लू जोन्स को देखा और उनको इन्होंने पब्लिश किया, उस समय मुझे आदरणीय मृत्युंजय भाई की बहुत अच्छी बात याद आती है कि वंस अपॉन अ टाइम भारत was the most happiest country. It was the most happiest country. तो मुझे लगता है माधुरिमा मैडम कि हमको नेशनल ज्योग्राफी को 1-2 साल के बाद उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी में इनवाइट करना चाहिए। हमको ये बताना चाहिए कि पूरे भारत में लखनऊ यूनिवर्सिटी हैज टेकन दिस लीड टू क्रिएट अ हैप्पी ब्लू जोन इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। सो आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट यू। एक बहुत श्रेष्ठ संकल्प है मैडम दिस वन, और इस श्रेष्ठ संकल्प में हम सभी आपके साथ बहुत प्यार से जुड़े हैं। तो ये जो 5 ब्लू जोन्स उन्होंने देखा, उसमें उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखा कि सभी वहां के जो लोग हैं ना, दे आर ऑल सचिन तेंदुलकर, दे आर ऑल विराट कोहली, सभी ने सेंचुरी मारा है। 100 वर्ष
तो हमारे भारत में कहते हैं कि एक समय पर इस धरती पर देवी देवताएं थे जो है ना 150 वर्ष से ज्यादा रहते थे. सो अवर हिस्ट्री इज सो वंडरफुल, अवर हिस्ट्री इज सो ब्यूटीफुल. ये हम लोग पढ़ाते हैं और हमने एजुकेशन में ये भी पढ़ा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. सो आई थिंक जो शिवानी बहन ने बहुत प्यार से एक बात कही, नो एंगर जोन, अब उसको थोड़ा सा एडिशन लेकर आना पड़ेगा. शायद 1 साल में आप लोग क्रोध मुक्त हो गए, अब क्या करना है? सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ नो एंगर जोन, अब उसको थोड़ा सा हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाते हुए, नाउ इज द टाइम वेयर वी शुड क्रिएट happy zones, you know, and this happy thinking laboratory is a very wonderful place to begin with. So उन्होंने ये देखा, मैं कुछ स्लाइड्स आपको बताता हूँ, जहां उन्होंने देखा कि they had a very wonderful way of living. इस पर हम थोड़ा सा हम स्टडी भी कर सकते हैं. ऑलरेडी हमारे पास बहुत सुंदर रेफरेंस है. We can certainly take the guidance help from Madhurima madam also. So with all these things, जो अभी का जो कॉमन इमोशंस जो हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा फियर, वरी, एंजाइटी, एंगर फॉर द लास्ट 6 months जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो पूरे बंद पड़े हुए हैं, राइट? दे आर क्वारंटाइंड एंड दे आर मिसिंग देयर फ्रेंड्स, दे आर मिसिंग द टीचर्स, दे आर मिसिंग द कलीग्स, यू नो. और ऐसे समय पर है ना, ईश्वर हमेशा कहते हैं अपने बचपन के दिनों को जरूर याद करना. Once upon a time we were so happy, so peaceful, so joyful. So I was doing a FDP program today morning, and I was doing an FDP program for all the engineering professors conducted by Atal and AICT. तो माधुरिमा मैडम, मैंने बहुत प्यार से उनको कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आज 3 बजे मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ जो लेबोरेटरी सिर्फ सॉम लैब, डॉम लैब, डिजाइन लैब, प्रोडक्शन लैब, FM लैब, ये तो हर यूनिवर्सिटी में होता है और हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है. बट वेरी हैप्पी टू टेल, और मैंने शेयर किया सारे प्रोफेसर्स के साथ कि वी आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ हैप्पी थिंकिंग लैब. और मैंने उनको ये कहा कि जो आज तक हम लोग जो डिग्रीज देते थे, BE देते थे, BTech देते थे, B.Pharm देते थे, BSc देते थे, BBA देते थे, बट इन द लास्ट 6 months जो कोविड का जो सिचुएशन आया है, और उसमें से हम लोगों ने बहुत प्यार से एक बात सीखी है, एंड दैट इज अ बेस्ट ग्रेजुएशन डिग्री दैट वी शुड बी टेकिंग आवरसेल्व्स एंड आवर स्टूडेंट्स. The best graduation degree in life is be calm, be cool, be cheerful. That is what is very important. So इस संदर्भ पर is what this happy thinking lab is going to work. Einstein was a very intelligent person, and because he belongs to science and also understood not just physics or metaphysics, इसलिए आइंस्टीन का एक बहुत सुंदर डायलॉग मुझे लगता है जब वो कहते हैं, if I had only 1 hour to save this world, I would spend 55 minutes defining the problem and only 5 minutes finding the solution. That's what Einstein had said. Very intelligent. तो फिर उसके आगे वो नेक्स्ट एक बहुत प्यार से डायलॉग कहते हैं कि no problem can be solved from the same consciousness that created it. So my dear friends, we are all aware कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी एक स्मृति होती है, उसकी कॉन्शियसनेस होती है. तो उस कॉन्शियसनेस को चेंज करना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. And that's what is very important. तो consciousness मतलब क्या? It's a mind. और जो ब्रह्मा कुमारीज ने जो स्टडी किया है, जो रिसर्च किया है, उसके आधार पर हम लोग माइंड को एक टीम की तरह लेते हैं. एंड फॉर द सक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हो, चाहे हमारे फैकल्टीज फ्रॉम द ब्रह्मा कुमारी, सो कैन बी वर्क एज अ टीम. और टीम का अर्थ क्या होता है? T means thoughts, E is emotions, A is attitude, and M is memories. हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारी स्मृति, और ये हमारा मन है. तो जब इंटरनल टीम सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है तो वी आर एबल टू जेल विद अदर्स. और इसके बारे में स्टडी हम लोग इस हैप्पी थिंकिंग लैब में जरूर करेंगे. तो करना क्या है? वी हैव टू मेक आवर माइंड अ वेरी बेस्ट फ्रेंड. वर्तमान समय पे हमें अपने मन को एक बहुत प्यारा सा दोस्त बनाने की जरूरत है. और उसके लिए मन को अगर ठीक करना है तो बुद्धि को दिव्य बनाना पड़ेगा और संस्कारों को बहुत श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा. I have been a student of this Brahma Kumaris for the last 25 years. So more than a teacher, I love to call myself as a student. और पिछले 25 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि मन को मैनेज करने के लिए बुद्धि कैसे दिव्य बनती है. और उसका एक बहुत क्लियर कट एक स्ट्रैटेजी है, एक फ्लो चार्ट है, एक एल्गोरिदम है, जो हम लोग धीरे धीरे हमारे फैकल्टी मेंबर्स in association with the psychology department, we will administer it to the students, and I'm sure we are going to have wonderful results. तो होता क्या है इस लैब में, हम लोग we are not going to move outside, but we are going to have an inner laboratory
जहां पर we are going to experience the qualities of the self. This is what we are going to do. So after having said this, I'll take 3 minutes कि हमारा इस लैब में क्या क्या विजन है, हम कैसे करने वाले हैं. And here I would love to thank my wonderful brother who has helped me, Shubhojit Bhai, or Radhaben, I'm pronouncing him rightly, right? A sweet brother from Lucknow who really helped me a lot. जिसने who is the coordinator and is helping us this, तो उसने थोड़ा सा मुझे बताया. So these are some of the objectives of this happy thinking lab. लेकिन और कुछ हम लोग टॉपिक्स हम लोगों ने डिसाइड किए हैं जिस टॉपिक्स पर हम लोग काम करने वाले हैं. दिस इज अ प्रपोज्ड लेआउट जो उन्होंने बहुत प्यार से बनाया है. वी आर ओपन फॉर चेंजेस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट अंडर द गाइडेंस ऑफ मृत्युंजय भाई जी ऑलरेडी अ लैब इज देयर वर्किंग इन जयपुर. And I would love to compliment Professor Mukesh sir, who is doing this successfully. And I myself had a chance to go and visit this laboratory. पूरे भारत में मैं करीब 150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं गया हूँ, लेकिन ये जो जयपुर के जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं गया और वहाँ पर मैंने वो जो हैप्पी लैब देखा, आई थिंक वंस माधुर्य मैडम एंड सम ऑफ द कलीग्स शुड आल्सो विजिट देयर. एटलीस्ट वर्चुअल विजिट तो आप जरूर कर सकते हैं. तो उसके आधार पर देयर आर सम प्रपोज्ड लेआउट जो हम लोगों ने किया है. One of this one is a silence room, है ना, जो हम लोग meditation room बनाएंगे. Then there is something which is called as a wisdom hall, जहाँ पे we will have beautiful interaction of the words of wisdom. हम लोग will have a heart-to-heart conversation. We will also have a counseling room, right? Maybe counseling की जगह एक अच्छा word भी बोल सकते हैं, heart-to-heart conversation room. We are always open for changes. जहाँ पर बच्चों को लगता है काउंसलिंग मतलब मेरे में कुछ गड़बड़ी है, नहीं, लेकिन जब आपको उनको लगता है कि मैं दिल से संवाद करने आ रहा हूँ, so they'll feel more comfortable. Then there is something which we call as a spiritual library. Yeah, Shobhit bhai, thank you for giving this presentation, my dear sweet brother. तो spiritual library हम रख सकते हैं, कुछ किताबें हम रख सकते हैं. There would also be a research cell. तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक रेफरेंस है और मैं चाहूंगा माधुरी में मैडम कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. And they can help us in data collection. They can help, in beautiful compilation of data. They can present some kind of papers. In fact, मैंने देखा जो प्रोफेसर मुकेश in Jaipur was doing, उन्होंने अपने सारे BE BTech स्टूडेंट्स को उस प्रकार का गैजेट्स दिया है जहां पर they were able to develop, they're able to see the mood swings in a person. और बहुत हेल्थ सेक्टर पर भी वो बहुत ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं. So what is the laboratory approach? 1 week classroom program होगा, spirituality in practice होगा, spiritual study होगा, daily meditation होगा. We will keep a record and these are some of the things. I'm not going to take much time for it. Spiritual tools होगा. These are the values that we are going to take. हम लोग कुछ एक अच्छे slogans बच्चों को देंगे, right? And mental pollution क्या है, spiritual safety kit क्या है, हमारे पास ये पूरा setup already is there. Brahma Kumaris have been doing this for the last 85 years. So it becomes very easy as far as the literature and the system is concerned. और these are some of the instruments जो हम लोग करेंगे. ये तो हम आगे हम लोग देखते रहेंगे. We will share with. So these are the assignments and the lab manual. और these are some of the activities जो हम लोग कर सकते हैं. So this is all the reference and there are various benefits of the thought lab. तो ये सब हमारे पास एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है. In collaboration with Lucknow University, we will slowly, with lots of love, and we'll start experimenting it. और मैं ये भी चाहता हूँ, मैं हमेशा अपने students को कहता हूँ, don't try to go and meet successful people, try to go and meet happy people. और मैंने ये देखा है अपने जीवन की इस यात्रा में कि successful people may not be necessarily happy, but all happy people one day will certainly become successful. तो students पूछते हैं मुझसे, सर happy people से कहाँ मिले? तो मैं कुछ अभी तक पर्सनल लोगों का नाम लेता था, but now I'll tell you कि there is a happy thinking lab in Lucknow University. You can go meet their professors, meet their faculty members, and you can see they are working on this beautiful content of happiness. Having said this, we'll start experiencing these original qualities of the soul. So I'll just take 3 minutes. मैं चाहूँगा कि इस सुंदर अवसर पर हम लोग can we spread this vibrations of peace, love, and happiness to our wonderful, beautiful university. Lucknow University and the Brahma Kumaris, to our students, their family members, to the society, and certainly to the whole world also. Because both science and spirituality connects us to universal consciousness, right? तो हम 3-4 मिनट लेंगे. Let's meditate. आराम से बैठे. I want you to
आराम से रिलैक्स होकर बैठे. I will share screen the slide. It will just take not more than 3 minutes. So I'll put some wonderful images. और कुछ अच्छे संकल्पों को आपको फील करना है, महसूस करना है दोस्तों. Okay? शोभित भाई, are you able to listen to the music? हाथ उठाएंगे अगर आपको आवाज सुने. The audio is okay. I hope it is not disturbed. Fine. Good. Thank you. These images will help us to travel to this journey. I relax and slowly withdraw myself from the external world to my beautiful inner world. At the center of the forehead, I am a sparkling point of light. भ्रुकुटी के बीच में मैं एक चमकता हुआ ज्योति हूँ. I am a divine energy. I radiate positive energy. I'm feeling very light and easy. I'm very happy. Once upon a time, I was like this. I'm very joyful. ये मेरा अपना स्वधर्म है. खुशी मेरा अपना खजाना है. I'm completely free from my past. Past is past. बिंदी लगा देते. मैं स्वतंत्र हूं. I'm light and I spread the rays of positive energy to the entire world. This inner light helps me to lead a balanced life. I'm special, unique, and magical. I'm very pure and peaceful. मैं शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र हूँ. I'm grateful for every experience I have had, some pleasant, some unpleasant. But every experience was a beautiful teacher in this exam of life. No matter things are very strong and tough outside, but still I can become a flower, radiating the fragrance of peace, love, and happiness. I'm safe, I'm secure, and I'm serene. I'm an embodiment of unconditional love. I'm abundant, I am blessed, and I'm so good. I'm gentle and I'm kind. I'm caring. I'm blessed with divine values, which helps me to maintain harmony in managing challenges. There is always a hope. There is always a way things would become better. Again, India is going to become a very happy place to live in. Will become the lighthouse and might house, showing a way to the entire world. I'm always divinely guided and protected.
I thank the Almighty for this wonderful, beautiful day. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much. Namaskar. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. It was really a very beautiful session. And sir, it forced us to delve inside in ourselves and connected us with our inner thoughts. Thank you so much, sir. It was really a very great session. Now I would like to invite Radha Ben. Rajyogini Brahmakumari Radha Ben was born in 1964, and she was born in a very religious and philanthropic family. And she came into contact with this organization at a very young age of 18 years. And she dedicated herself towards the study of spiritual knowledge, practicing Raj Yoga meditation, and inculcating moral and ethical values in order to bring spiritual self-transformation and spiritual upliftment of humanity. And she has begun her spiritual journey 37 years earlier, and she has inspired and empowered many minds. And she has traveled a lot, spreading her message throughout. And she has delivered lectures with mastery over subjects connected with day-to-day life. She also organized an 8-day spiritual Mahotsav at Begum Hazrat Mahal Park. Then also a spiritual center, Atma Chintan Bhavan, was inaugurated at Vipul Khand, Gomti Nagar. And in addition to this, Radha Ben has organized various health camps and stress-free and meditation shivers. And she has been associated with youth training programs, as well as values for excellence in administration. She has been a part of various conferences, and she has been a popular motivational instructor and lecturer, as well as she has taken the spiritual initiative of clean the mind and green the earth, along with All India Education Campaign on Empowerment through Values and Spirituality. Ma'am, Radha Ben, we are really very grateful and thankful that you have joined us. And I request you to please say a few words and extend a vote of thanks. म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा. ओम शांति. सुनाई दे रहा? जी जी. हाँ. लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने इस शताब्दी वर्ष में बहुत सुंदर एक कदम उठाया है. एक देश के लिए रोल मॉडल बनने का उपाय ढूंढा है. जैसे सबने अपने अपने शुभ विचार दिया, तो देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में मैं चाहूंगी एक लाइट हाउस बन करके सबके लिए एक रोल मॉडल बने, सबकी शुभकामनाओं के साथ. जैसे हमारे वीसी सर ने कहा, शुरुआत जो शिवानी बहन के कार्यक्रम से शुरुआत हुई थी, अभी समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो एक सुंदर संकल्प के साथ इस विश्वविद्यालय में हैप्पीनेस लैब की शुरुआत आज उसका एमएयू हुआ. इसके उपलक्ष्य में हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे वीसी सर ने बहुत सुंदर अपनी शुभकामनाएं दी, और हम सब से यही चाहना रखी कि हम अवश्य इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे. इसीलिए मैं वीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक हमने बाहर की तरफ हमने हैप्पीनेस को ढूंढते रहे, उसको हमने खोजा, ढूंढा, लेकिन उसका जो रिजल्ट अल्पकाल के लिए थोड़ी देर के लिए जरूर मिला, लेकिन हमारी हर सांस के साथ हैप्पीनेस हम चाहते हैं. हर
बोल के साथ जीवन के हर क्षण हम हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी एक इंटरनल साइंस है। जैसे वो साइंस के साधनों के द्वारा हम खुशी का थोड़ी बहुत के उपलब्धि का अनुभव करते हैं, इस इंटरनल साइंस को समझ करके स्पिरिचुअलिटी को गहराई को जानेंगे तो हमेशा हम खुशनुमा जीवन जी सकते हैं, ये संभव है। तो इनर साइंस को समझने के लिए ही ये हैप्पीनेस लैबोरेटरी का उद्घाटन कहेंगे, आज की शुरुआत हम कहेंगे। और इस कार्य के लिए विशेष देख रही मैं बड़ा इंटरेस्ट लेकर के समर्पण भावना से लगे हुए हमारे प्रोफेसर मधुरिमा जी, दिल से जब भी उनसे मिलना हुआ दिल के साथ जुड़ करके इस कार्य में लगे हुए, और हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही इस लैबोरेटरी को सफलता की ओर लेकर के जाएगा। हमारे भ्राता मृत्युंजय जी राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, तो खास अपना अमूल्य समय दे करके इन्होंने भी एक इंस्पिरेशन दिया हमको, हैप्पीनेस, हैप्पी लव, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रति उनका एक आशीर्वाद रहा, एक ऐसा मॉडल बने, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारे स्वामीनाथन भाई जी सुंदर तरीके से इस हैप्पीनेस लैब में जो जो कार्य होगा, किस तरीके से हम ब्रह्मा कुमारी प्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर प्रकाश डाला। और हमारी जो कोऑर्डिनेटर मानिनी बहन जी रही, हम सबको सुंदर से एक माला के रूप में पिरो करके सबको सबके सामने लाया। तो ऐसे मानिनी बहन का, और जो सुनने वाले सभी जो हमारे प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सारे कर्मचारी गण भी है, प्रोफेसर है, वीसी सर, वंस अगेन टू वीसी सर, और ब्रह्मा कुमारी संस्था से हमारे संस्था से जुड़े हुए भाई बहने भी हैं, हम इन सब को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। आज एक शुरुआत, नई शुरुआत हुई, और एक जिम्मेवारी के साथ, हम एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकर के जितने भी सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज ही हम एक संकल्प ले ले, हम अपने लाइफ को हैप्पी बनाएंगे। दूसरों के लिए जब तक हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे तब तक उसका इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, सिखाने वाले नहीं हैं, हम अपने लाइफ से हैप्पी रह करके हमारे बिहेवियर से, हमारे सोच से, हमारे वाइब्रेशन से सबको हैप्पी करने का संकल्प ले लेंगे। आज मैं चाहूंगी जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी इस समय में प्लेटफॉर्म पे है, एक संकल्प जरूर लेंगे, हम अपने जीवन में हैप्पी रहेंगे। असंभव कुछ नहीं है, एक थॉट की दूरी है। एक दृढ़ संकल्प रखेंगे, हर हाल में हमें खुशहाल रहना है। खुशी मेरे जीवन की प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पावर है, मेरी अपनी शक्ति है। मैं कुछ भी हो जाए अपनी इस प्रॉपर्टी को मैं खोने न दूं। जहां मैंने अपना समझा, अपनी चीज को हमेशा संभाल करके चला जाता है, तो ये मेरी चीज है। इसीलिए किसी भी हालत में चीज चली जाए, हर जाने कुछ भी चला जाए, लेकिन हमारी खुशी न जाए। खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसी चिता नहीं कहा गया। खुश रह करके खुशी देने वाले खुशनुमा बन करके दिखाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर हैं पीसी मिश्रा सर, क्या है इस समय? सर ने ज्वाइन किया था, मैं चाहती हूँ 2 शब्द कहें, वो भी है क्या सर? पीसी मिश्रा सर सुन रहे हैं आप हमें? डॉक्टर माननी है क्या सर? मुझे दिखाई दिए थे तो मैंने कहा अगर वो भी कुछ कहते। हाँ चलो, पल्लवी मैम है क्या? शायद नहीं है, वो उनका नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत रहता है, ज्वाइन रहता है। तो सबको बहुत बहुत नमस्कार, और थैंक यू माननी फॉर कोऑर्डिनेटिंग। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम फॉर सच ए शॉर्ट नोटिस। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हम लोगों ने प्रोग्राम करा और बहुत अच्छे से किया, और इसी शुभ भावना के साथ कि हम इसी तरह जुड़े रहेंगे और अपने बच्चों के लिए और आसपास के वातावरण के लिए मिल के काम करते रहेंगे। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आभार। थैंक यू थैंक यू सर का सेशन तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पीस के साथ वो एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू
ओम शांति।